ठीक है, तो ग्लॉटिक एंड सुप्राग्लॉटिक आंसर्स यूज किए थे, ठीक है। उन्होंने वीए का हमने पढ़ा मॉडल फिक्स्ड है, यही वीए मॉडल वाला मॉडल जो है एक आर्म जो फिक्स रहेगी इन आरटीओजी एंड ईओआरटीसी एंड गॉटेक, सब में ये आर्म तो फिक्स रहेगी जो ये वीए ट्रायल की है, ठीक है। दैट इज इंडक्शन कीमो फॉलोड बाय, इफ देयर इज अ गुड रिस्पॉन्स यू विल डू थर्ड साइकिल ऑफ इंडक्शन कीमो फॉलोड बाय रेडिएशन and the other arm you will go for surgery, ठीक है। so VA arm में सबसे पहले बोला था that you can preserve larynx in as high as 64% of patients, overall survival में difference नहीं था, you can do without surgery also, ठीक है। सो RTOG 911 3 times 1 so 3 arms, एक आर्म मैंने आपको बताया फिक्स रहेगी, VA आर्म जो है that is fixed, ठीक है। सो इंडक्शन कीमो वही 2 drugs followed by depending on how is the response, ठीक है। if the response is good we will go for the third cycle, otherwise we will go for surgery. The other 2 arms are non-surgery arms, that is radiation and chemoradiation arm, ठीक है। सो इसमें ना देखो, so they saw कि one extra thing, because they had 3 arms, one thing, that extra thing that they saw was when you give a concurrent chemoradiation your larynx preservation is higher as compared to giving induction chemotherapy, ठीक है। and even after a follow up of 3.8 years they found that doing concurrent chemoradiation gives higher rate of larynx preservation than induction followed by radiation alone, ठीक है। So they said that concurrent chemoradiation should be the standard of care when you are attempting a larynx preservation in locally advanced disease, ठीक है। Even when you had a long term follow up of RTOG 911 उन्होंने देखा कि लोकल कंट्रोल अभी भी सेम मेंटेन हो रहा था, सर्वाइवल हाउएवर अभी भी कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। सो वी डिस्कस VA, वी डिस्कस RTOG, नाउ थर्ड वन इज EORTC। EORTC को याद करने के लिए इक्वल नहीं ऑल्टरनेट, सो दे सेड एक आर्म तो फिक्स रहेगी, कौन सी आर्म? VA arm is fixed, that 2 cycles of PF followed by एक प्रोग्रेशन हुआ तो सर्जरी, नहीं हुआ तो इंडक्शन मोर एंड फॉलोड बाय EBRT। दूसरे में इक्वल नहीं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या करेंगे? alternate cycles of radiation and chemo. So their endpoints was also survival with functional larynx. Here also they found that there was no difference in overall survival, progression-free survival, ठीक है, and toxicity was similar. So they said that doing an alternate regimen is also acceptable. अगर आप induction followed by chemoradiation नहीं दे पा रहे हो तो alternate is also a good method of doing it, ठीक है। now one thing Gore-Tex, ठीक है। so Gore-Tex is one of those studies that compared 2 drug versus 3 drug in larynx, ठीक है। then again in Gore-Tex also one arm will stay fixed, always remember VA ने एक बार ये वाली आर्म दे दी, उसके बाद वो RTOG 911 हो, EORTC हो, Gore-Tex हो, सब में ये आर्म तो फिक्स रहेगी, ठीक है। अब इसमें वही इंडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेकिन उसके बाद ये इंडक्शन के लिए जो कीमो यूज कर रहे हैं वो अलग है, एक 3 ड्रग है, एक ट्रू ड्रग है। तो जो 3 ड्रग है, 3 ड्रग में जो ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट है दैट इज वेरी हाई, ठीक है। इट इज अराउंड 41% कंप्लीट रिस्पॉन्स इन TPF ग्रुप, ठीक है, एंड 30% complete response in PF group. So total response 80% in 3 drug and 59% in 2 drug. Complete response is 41% in TPF and 30% in PF. So they said that in larynx preservation also 3 drug is better. Okay, and larynx preservation rate 3-year larynx preservation rate 3 drug arm में better था as compared to 2 drug arm. Overall survival however was the same, ठीक है। DFS also was better with TPF but it failed to reach a statistical significance, ठीक है। So Gore-Tex का there was a long term update also, ठीक है। Here also they said that even after a long term follow up they said that larynx preservation rate was higher in the 3 drug arm as compared to the 2 drug arm, that is 74% in 3 drug versus 58% in the 2 drug arm,
ठीक है, एंड 70% वर्सेस 46%। तो 10 साल तक जाते जाते जो गैप था वो और बड़ा हो गया, बट अब भी ओवरऑल सर्वाइवल में कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं आ पाया, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस 50% वर्सेस 41 एंड 30% वर्सेस 23.5, बट कुड नॉट रीच स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, नाउ व्हाट वी रेड, टैक्स 323 एंड 324 हमने पहले भी पढ़ा, हमने याद किया था टैक्स 323 इज 3 ड्रग वर्सेस 2 ड्रग, 1 जीएस हमने जो पढ़ी थी। टैक्स 324 में हमने ऑपरेबल कैंसर्स भी इंक्लूड किए थे, रिसेक्टेबल कैंसर्स। तो इन्होंने भी ये देखा, सो two studies which are comparing 3 drug versus 2 drug in larynx, one of them is Gortec, the other one is Tax 324. They also compared 3 drug versus 2 drug. उन्होंने भी बोला that laryngectomy free survival was improved with TPF versus PF, that is 0.030 उसका p value थी. Then Tremplin. Now Tremplin is a little different. ठीक है, so remember it like Tremplin में हम क्या चाहते हैं, we go one level up. जब हम trampoline पे घूम when we jump on a trampoline we go one level up. So it tried to go one level up by using not a chemoradiotherapy but bioradiotherapy. So Trampolin was one level up because it tried to compare induction chemotherapy followed by CTRT or bioradiotherapy. So as I said, इसमें VAM वैसा ही रहेगा, इंडक्शन कीमो इसने भी दी, ठीक है। उसके बाद जिसको मोर देन हाफ पार्शियल रिस्पॉन्स आया उसको उसने EBRT दी, फॉलोड बाय एक आर्म में कीमो रेडियोथेरेपी, दूसरे आर्म में सिर्फ सिटुक्सीमैब दिया। तो इसने दिखा कि सिटुक्सीमैब नहीं है, वो CTDP क्या मतलब सिस्प्लेटिन है बस। तो EBRT दोनों को दिया ना, EBRT भी दिया, फिर उसके बाद सिस्प्लेटिन दिया, एक को सिटुक्सीमैब दिया। ठीक है, तो एक को उसने सिटुक्सीमैब दिया, एक को उसने सिस्प्लेटिन दिया। सो ही सेड दैट बायोरेडियोथेरेपी में इन दोनों में लैरिंक्स प्रिजर्वेशन रेट वाज ऑलमोस्ट बराबर, 95% वर्सेस 93%। सो ये उनका प्राइमरी एंड पॉइंट था। सेकेंडरी एंड पॉइंट वाज कि लैरिंक्स फंक्शनल प्रिजर्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे सेड नॉट जस्ट लैरिंक्स प्रिजर्वेशन, दे आल्सो सेड फंक्शनल लैरिंक्स प्रिजर्वेशन। बायो रेडियोथेरेपी मतलब पहले भी कीमो दे रहे हैं, बाद भी कीमो दे रहे हैं, बीच में आरटी दे रहे हैं। बायोलॉजिकल यूज करना नहीं हुआ इसमें, पता नहीं, पगले हैं। EBRT को आरटी कीमो के साथ नहीं दिया है, बट एक में सिटुक्सीमैब दिया ना, सिटुक्सीमैब बायोलॉजिकल यूज किया। हाँ शायद इसलिए हो सकता है, पता नहीं। तो उसने बोला कि बायोरेडियोथेरेपी यानी सिटुक्सीमैब बेस्ड रेडियोथेरेपी can be considered as a substitute for cisplatin based chemoradiotherapy. फिर वही मैकेंजी मेटा एनालिसिस। तो हमने बोला 3 ड्रग वर्सेस 2 ड्रग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो गॉटेक, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टैक्स 324, ठीक है, फिर हमने पढ़ा ट्रेम्पोलिन वाज बायोरेडियोथेरेपी वर्सेस कीमोरेडियोथेरेपी, एंड देन मैकेंजी ने 3 चीजें, मैकेंजी वाज अ मेटा एनालिसिस जो मल्टी साइट था, ठीक है। सो इट कंक्लूडेड 70 ट्रायल्स जिसमें 10,000 से ज्यादा पेशेंट थे। फिर उसका अपडेट आया 2007 में, फिर सेकंड अपडेट आया 2009 में। तो एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। That is, when should you give chemo, why should you give chemo, ठीक है। So McKenzie said कि you should give chemo, ठीक है। So timing of chemotherapy and the effect of chemotherapy, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि loco-regional treatment was compared with loco-regional treatment plus chemotherapy, ठीक है। सो उन्होंने 3 टाइप के कंपैरिजन किए कि अगर हम कोई लोको रीजनल ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें कीमो की एडिशन करते हैं, उससे कोई फायदा होता है या नहीं, ठीक है। फिर टाइमिंग ऑफ कीमोथेरेपी, उन्होंने बोला कि NACT देने से वर्सेस कॉन्कॉमिटेंट देने से वर्सेस ऑल्टरनेट देने से अगर आप ड्रग सेम रख रहे हो तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो इन्होंने फिर आगे देखा कि
सो दे रैंडमाइज 3 to 1 6 पेशेंट्स और उन्होंने देखा कि हजार्ड रेशो जो कीमोथेरेपी का था दैट वाज 0.87. ठीक है, तो कीमोथेरेपी देने से फर्क तो है. सो मैकेंजी एनालिसिस आंसर्ड अबाउट when to give chemotherapy and why to give chemotherapy. So why to give chemotherapy का तो आंसर है that hazard ratio जो है डेथ की कम हो जाती है कीमोथेरेपी से. ठीक है, 0.87 हो जाती है. कब देनी है? सो ये सेड कि so there was an addition of chemotherapy, absolute survival था. जब आप इंडक्शन देते हो तो 2% है, कॉन्करेंट देते हो तो 8% है. ठीक है, सो गिविंग कॉन्करेंट इज बेटर देन गिविंग इंडक्शन. ठीक है, एंड प्लैटिनम बेस्ड रेजिमेन इज मोर इफेक्टिव. So there is no difference in efficacy between mono and multiple drug platinum regimens. So there is a small reduction in distant metastasis which is found in population with CTRT, and inverse relation with age and impact of chemotherapy which disappears by the age of 70. So you give chemotherapy because it has survival benefit more with concurrent than with induction. Platinum is better. Single agent is equal to multiple agents. ठीक है, and when you give induction it leads to small reduction in distant metastasis. ठीक है, sorry, when you give concurrent it leads to small reduction in distant metastasis. ठीक है, लेकिन ये reduction is not significant. और कीमोथेरेपी और एज का एक इनवर्स रिलेशनशिप है, बट वो 70 के जाने के बाद वो हो जाता है. ठीक है, फिर ये IMRT पढ़ना है क्या? ये तो उनका तो ठीक है, आरटी वालों का क्लास था ना ये. ठीक है, तो लैरेंजल प्रिजर्वेशन में यही हमने 4-5. ठीक है, सो दे सेड कि थायराइड इंसिडेंटलोमा में द incidences increase क्योंकि younger population is being diagnosed. ठीक है, this is because incidental जो है वो बढ़ रहे हैं because imaging बढ़ रही है. ठीक है, so thyroid incidentaloma का definition क्या है? Unsuspected asymptomatic thyroid lesions जो, या पहली बात तो they are unsuspected asymptomatic, जो कब मिलते हैं? या तो imaging पे मिलते हैं या सर्जरी पे मिलते हैं, और इनका diameter usually 10 to 15 mm से कम होता है. ठीक है, so when these thyroid incidentalomas, when on workup you find malignancies, they are no longer called thyroid incidentaloma, now they become microcarcinomas. ठीक है, so now what is microcarcinoma? These are occult carcinoma जो कि छोटे होते हैं, less than 0.5 centimeter in diameter, usually papillary होते हैं और usually benign जैसा behavior show करते हैं. ठीक है, so thyroid incidentaloma की definition लिखेंगे asymptomatic unsuspected thyroid lesions जो या तो imaging पे मिलते हैं या सर्जरी पे मिलते हैं. ठीक है, फिर एक चीज क्या लिखनी है कि when it comes to thyroid malignancy, PET CT की sensitivity is 100%. ठीक है, एंड स्पेसिफिसिटी इज 69. ठीक है, फाइनली मासी कोई कॉल लगा है. सो मैंने देखा है. So thyroid incidentalomas identification rate for PET CT was 19.8%. ठीक है, so 19.8% of thyroid incidentalomas में malignancy मिली थी. सो ड्यूरिंग सर्जरीज कौन कौन सी सर्जरीज में हमें थायराइड इंसिडेंटलोमास मिल सकते हैं? जैसे जो भी नेक की सर्जरीज हैं, जैसे कि पैराथायराइडेक्टमी, कैरोटिड एंडार्टरेक्टमी, सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी, एक्सप्लोरेशन फॉर ट्रॉमा एंड एसोफेजियल सर्जरी. ठीक है, सो clinical features which are regarded as highly suspicious for thyroid incidentalomas, there are certain highly suspicious features. ठीक है, तो कौन से वो highly suspicious features होते हैं? These are नोड्यूल जो कि किसी बच्चे में मिले, उसमें नोड्यूल जो किसी मेल में मिले, नोड्यूल जो किसी प्रायर हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन में मिले, नोड्यूल जो हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडुलरी थायराइड कैंसर. सो दीज इंसिडेंटलोमास कम विद अ हायर susceptibility to being malignant. ठीक है, so जो पेट से मिलते हैं वो मैंने आपको बताया is associated with a higher risk of malignancies, and उनमें जो है जिनमें higher uptake होगा. So पहली बात तो nodules which are found on FDG PET have higher risk of malignancy, and उनमें भी the ones who have higher uptake
SUV wise uptake, they are more susceptible to being malignant. ठीक है, so कुछ PET texture derived features होते हैं that are used to stratify patients with incidentaloma. ठीक है, so PET associated thyroid incidentaloma जो है, अगर उसमें कुछ जो PET associated thyroid incidentalomas होते हैं वो are more aggressive types. ठीक है, so if you have found out an incidentaloma on PET, it is mostly associated with a poor prognosis. ठीक है, so now management. So first of all, थॉरो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, क्योंकि हमें ये वाले जो खराब वाले फैक्टर्स है, हाईली सस्पिशियस फैक्टर्स, ये रूल आउट करने हैं कि अगर बच्चे में है, मेल में है, हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन है या मेडुलरी है, दे आर कमिंग विद अ बैड प्रोग्नोसिस. कोई MTC की फैमिली हिस्ट्री, कोई MEN2 की फैमिली हिस्ट्री, रेडिएशन टू नेक प्रीवियस थायराइड सर्जरी तो नहीं है. देन सेकेंड थिंग, नेक अल्ट्रासाउंड करेंगे एज एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, बिकॉज इट कैन फाइंड नोड्यूल्स एज लो एज 3 mm. उसमें क्या देखना है? हाइपोएकोजेनेसिटी, सॉलिड कॉम्पोजिशन, इरेगुलर मार्जिन, फाइन माइक्रोकैल्सिफिकेशन, एब्सेंस ऑफ हेलो, टॉल मोर देन वाइड एंड सेंट्रल रादर देन पेरिफेरल फ्लो होना चाहिए. ठीक है, इसके बेसिस पे वी विल डेवलप अ थायराइड स्टेजिंग. फिर FNAC का ये देखना है कि देखो, अगर तो हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो 10 mm इज आवर कट ऑफ. अगर हाई रिस्क फैक्टर है तो 10 mm से कम में हमें FNAC लेनी है. सो all thyroid incidentalomas without high risk factors less than 10 mm is our cutoff. ठीक है, we should do an FNAC. Sorry, मतलब more than 10 mm without high risk factors we have to do FNAC. And when you have a high risk history, तो size does not matter. So अगर if you have a high risk history या फिर there are suspicious features on ultrasound, ठीक है, because ultrasound can find a nodule which is as small as 3 mm. So if any suspicious findings on the ultrasound or a high risk history, then you will not keep the cutoff as 10 mm, then you will do FNAC always. But if there is no family history, there is no high risk feature on ultrasound, then you keep a cutoff of 10 mm. ठीक है, सो FNAC किया एंड उसके बाद अगर 4B5, एंड दूसरी चीज थायराइड्स में जो USG हम फीचर्स ले रहे हैं 4B5, कोई भी नोड्यूल जो 4B5 है, यू विल नॉट कीप द कट ऑफ एज 10 mm. इन केस ऑफ मल्टीपल नोड्यूल्स, जो भी नोड्यूल सबसे ज्यादा सस्पिशियस सोनोग्राफिक फीचर्स है उसको हम वो करेंगे, सैंपल करेंगे, एंड उनमें से अगर सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं तो सबसे लार्जेस्ट नोड्यूल जो है उसको सैंपल करेंगे. ठीक है, सो एक बार FNAC आया, अगर FNAC बिनाइन है तो पहली बार तो उसको लगभग बुलाओ कि 6 to 18 months के बाद बुलाएंगे आफ्टर इनिशियल FNAC. ठीक है, to do a repeat ultrasound examination. ठीक है, so first you will call them after 6 to 18 months. Then you will look at the pattern of nodules. ठीक है, if the nodule has been same, how do you say that the nodule has been same? If there is no change in volume for more than 50% or less than 20% in increase in 2 dimensions. So volume में 50% change and 2 dimensions में 20% change अगर नहीं है तो first you were calling after 6 to 18 months, now you will call every 3 to 5 years. So पहली बार कोई पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको 6 to 18 months में आफ्टर एग्जामिनिंग आपने FNAC किया, FNAC में बिनाइन आया तो आपने 6 to 18 months के बाद बुलाया, उसके बाद यू विल कॉल आफ्टर एवरी 3 to 5 years. ठीक है, एवरी टाइम दैट दे कम यू विल एग्जामिन फॉर द ग्रोथ बोथ बाय एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो बाय अल्ट्रासाउंड. ठीक है, नाउ परफॉर्मेंस स्टेटस, प्रोग्नोसिस. ठीक है, तो परफॉर्मेंस स्टेटस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज नो मैटर क्या स्टेजिंग है, अगर एडवांस्ड मैलिग्नेंसी भी है लेकिन अगर पेशेंट का पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस है, इट इज बेस्ट टू बी लेफ्ट अलोन. सो इफ द PS इज बैड, नो मैटर हाउ बैड द इंसिडेंटलोमा इज, लीव इट अलोन. ठीक है, नाउ हाउ टू मैनेज the incidentaloma. If it is, most of the incidentalomas are PTCs. ठीक है, so if it is a PET detected incidentaloma, it is mostly going to be a PTC. ठीक है, so PTCs, very small PTCs, ठीक है, they can be observed also.
because they have a excellent prognosis, but you'll have to make sure that they have no abnormal lymph nodes. ठीक है, but when it comes to follicular, medullary और anaplastic, they have to be managed no matter how small they are. ठीक है, ये incidentaloma हो गया. Now ठीक है, now neutron therapy. न्यूट्रॉन थेरेपी इन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स. ठीक है, सो इसमें ना देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच हैव टू बी रिमेंबर्ड व्हिच आर इम्पोर्टेंट. सो व्हाई इज न्यूट्रॉन थेरेपी डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन थेरेपी? ठीक है, फर्स्ट थिंग, इट हैज अ हाई रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. ठीक है, सो द सेम इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एज हाईली बायोलॉजिकली इफेक्टिव दैट अ न्यूट्रॉन विल बी. ऐसा क्यों है? ठीक है, पहली चीज कि ये रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्यों आई, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक सेल को हिट करता है, सो द इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली प्रोड्यूस अ हाई सिंगल हिट ऑन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, सो on the other hand, when you have a neutron, it is most likely to produce a double stranded DNA hit. ठीक है, so in an electron a single low energy radiation, ठीक है, low energy transfer radiation. ठीक है, so when it interacts with the atomic nuclei, it produces only single hit to the double stranded DNA. ठीक है, so but when a neutron hits, ठीक है, तो it produces unrepairable double stranded DNA hits. So that ways that cell is not that easily repairable. तो एक बार प्रोटॉन ने किसी सेल को मार दिया तो वो मार दिया. On the other hand, electron, because it is low energy radiation वाला, ठीक है, it will not be able to produce as good double stranded hits. It will able to produce only single hit double stranded DNA. ठीक है, दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन्स डैमेज करते हैं डीएनए को, ठीक है, सो दे आर सेल साइकिल फेज डिपेंडेंट. ठीक है, सो द सेल्स गेट टाइम इन द मिडिल टू गेट रिपेयर्ड. ठीक है, ऑन द अदर हैंड न्यूट्रॉन डैमेज इज सेल साइकिल इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो when electron hits a neutron or a cell, so it also has sublethal effects. ठीक है, but when the तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि अगर क्या होता है, नॉर्मल जो अपन रेडियोथेरेपी देते हैं ना, तो वो G2M या फिर G2 या M फेस या G2M फेस, इन वाले के सेल्स को ही मार पाता है. G1 और S फेस जो होते हैं वो नॉर्मल RT को असिस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेल कौन सी भी सेल साइकिल के फेज़ में हो. ठीक है, किसी भी सेल साइकिल की फेज़ में होगा तो भी ये मार सकता है. तो ये वर्ड हुआ सेल साइकिल इंडिपेंडेंट. तो ये अब सेल साइकिल इंडिपेंडेंट किसी को भी मारे जा रहा है तो ये लीथल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कम सेल्स को ही मार पा रहा था, जो सिर्फ G2 या M फेस में थे उनको ही मार रहा था, और ये सबको मार रहा है. ठीक है, और इसमें क्या इशू रहता है कि ये बहुत हैवी पार्टिकल है. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर हैवी पार्टिकल्स, और इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है. और इलेक्ट्रॉन्स हल्के, इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती. अभी उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे, कौन सा क्रॉम्पटन करता है, कौन सा वो करता है. तो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म से इनका डिफरेंट टाइप का एक्शन होता है. तो ये प्रोटॉन्स हैवी पार्टिकल होते हैं, इसलिए ये हाइपोक्सिया में भी काम करते हैं, ये रिकरेंट ट्यूमर्स में भी काम करते हैं. जो नॉर्मल आरटी के लिए जो अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं वो उसमें भी काम कर लेते हैं. और ये दोनों फ़ायदे प्रोटॉन्स में भी हैं और न्यूट्रॉन्स में भी हैं, इसलिए ये दोनों आरटी बेटर होती है. तो इनका जो हेड एंड नेक में इंडिकेशन है वो मोस्टली रिकरेंट ट्यूमर्स में अच्छा है.
या री रेडिएशन या रिकरेंट ट्यूमर, उन सब में ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ठीक है। और एक चीज और है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज दीज जनरेट फोटॉन्स, जनरेट फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सो इट आल्सो कॉजेज सेलुलर डैमेज थ्रू द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। सो न्यूट्रॉन्स जो है लेस ऑन ऑक्सीजन डिपेंड करते हैं एज कंपेयर टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन कि द टिश्यू शुड बी वेल ऑक्सीजनेटेड। ऑन द अदर हैंड न्यूट्रॉन्स दे डिपेंड लेस ऑन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो खुद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। सो देयर आर दीज 3 points that we have to write. So that is why RCOG conducted a multinational RCT which said that for inoperable and recurrent salivary gland tumors, ठीक है, so for them neutrons were a good modality. Overall survival was also better with patients which were treated with neutron therapy. ठीक है, so it should be treated as it should be considered as the treatment of choice for these settings. ठीक है। नाउ हेमीथायरॉयडेक्टमी, अब वो पहले ऐसा कहा जाता था कि फॉर स्मॉलर नोड्यूल्स, सो हेमीथायरॉयडेक्टमी अब जो है वी आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो choosing initial surgery, so now they're saying that the extent of initial surgery should be individualized, and hemithyroidectomy mein we will remove the ipsilateral thyroid lobe with isthmus, with or without removal of the central lymph nodes. So when should you consider hemithyroidectomy? So first is preoperative image findings. What are you going to find on image findings? Nodule का size, characteristics और lymph node status. ठीक है, so first of all nodule का size. So initially they used to say that any nodule which is less than 1 centimeter we should consider for hemi. 4 से ज़्यादा total, 1 to 4 के बीच में हमें features देखने हैं rest. ठीक है, so now they say that hemithyroidectomy should be considered for nodules which are less than 4 centimeter. अगर उनमें कोई worrisome features नहीं है तो less than 4 centimeter हम कर सकते हैं। ठीक है, and when it comes to less than 1 to 1.5 centimeter without suspicious features, तो उनके लिए active surveillance भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो suspicious nodular features कौन से होंगे? So that is extrathyroidal extension, एक सेकेंड होल्ड ऑन। We can consider hemithyroidectomy for them. So what are these high risk factors? So these are extrathyroidal extension या फिर ठीक है, सो एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन अगर नहीं है और लिम्फ नोड अगर 0 है, ठीक है, तो अगर ये दोनों नहीं है, एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन एज इन अगर कॉन्ट्रालैटरल लोब में भी डिजीज नहीं है, कोई एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन नहीं है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर ये सब नहीं है तो आप 4 सेंटीमीटर से नीचे हेमीथायरॉयडेक्टमी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो एज सून एज यू सी एनी फॉर्म ऑफ एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ टोटल थायरॉयडेक्टमी। ठीक है, अगर प्री ऑपरेटिवली पता है कि एक्स्ट्राथायराइडल एक्सटेंशन है या सस्पेक्टेड भी है तो हेमी के लिए जाओ ही मत। ठीक है, अगर इंट्राऑपरेटिवली लग रहा है तो कन्वर्ट कर दो लिम्फ नोड स्टेटस में भी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको पैथोलॉजिकल लिम्फ नोड्स लग रहे हैं, यू शुड ideally FNAC them and do a thyroglobulin washing also. अगर ऐसा लग रहा है that they are metastatic, do not go for hemithyroidectomy. फिर contralateral lobe, contralateral lobe में क्या है, अगर बायलैटरल आपको डिजीज लग रहा है, डू नॉट गो फॉर हेमीथायरॉयडेक्टमी। और अगर दूसरे लोब में डिजीज है भी, उसका कैरेक्टर अच्छे से डिफाइन करो। ठीक है, अगर कैरेक्टर वाइज वो मैलिग्नेंट नहीं लग रहे हैं तो इवन विद बायलैटरल nodules, if the opposite side nodules are not dangerous, we can go for hemithyroidectomy even then. ठीक है, but for the bilateral nodule we'll have to go for बार-बार हमें सर्विलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, देन डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग एक बार ये हमने देख लिया कि प्री ऑपरेटिव इमेजिंग फाइंडिंग्स एनीथिंग लेस देन 4 सेंटीमीटर विच डज नॉट हैव अ एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन, नोड्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऑपोजिट साइड पे कुछ सस्पिशियस नहीं है, वी कैन गो फॉर
टोटल हेमीथायरॉइडेक्टमी। ठीक है, फिर बेथेस्डा स्टेजिंग हमें पता है कि ठीक है, बेथेस्डा स्टेजिंग तो वी नो। तो इसमें ना ये लिखा हुआ था कि पहला ऐसा कहा जाता था कि फॉर एनीबडी हु हैज ब्राव 600E म्यूटेशन दे कम विद अ हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड इट इज अ मोर अग्रेसिव बिहेवियर वाला ट्यूमर। ठीक है, पर अब ऐसा कहा जाता है कि इवन ब्राव 600E इज आल्सो नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, टर्ट म्यूटेशन, अगर टर्ट म्यूटेशन है तो टर्ट म्यूटेशन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर हेमीथायरॉइडेक्टमी। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो फायदे क्या हैं हेमीथायरॉइडेक्टमी करके? हेमीथायरॉइडेक्टमी करके आपके पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोन लेवल्स जो हैं वो गिरेंगे नहीं। यू विल नॉट बी लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट ऑन थायराइड सप्लीमेंट्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। नाउ देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच विल डिटरमाइन कि आपको लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन लेना है या 2% ही नहीं। बैटरी है तुम्हारी। मेरा पेन ड्राइव निकल जाएगा अगर मैंने, मतलब मेरे पेन ड्राइव लेवल्स जो है वो भी डिटरमाइन करते हैं कि अगर आपको पता ही है कि पेशेंट को पोस्ट ऑप आप हेमी करके आ जाओ और हेमी करने के बाद भी उसको थायरॉक्सिन खानी पड़े तो फायदा क्या है हेमी करने का। ठीक है, सो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि उसको हो सकता है पोस्ट ऑप थायराइड हार्मोन फिर भी खाना पड़े। वो क्या क्या है? अगर उसका प्री ऑप टीएसएच ही बहुत हाई है तब, अगर इकोजेनेसिटी में आपको हेट्रोजेनस थायराइड ग्लैंड मिल रहा है तब, और अगर उसको थायराइड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तब। ये 3 चीजें। उसके अलावा ठीक है, देयर वाज आल्सो मेल जेंडर वाज आल्सो वन ऑफ देम आई थिंक। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। तो ये 3 चीजें अगर उसको हैं तो ही विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर थायराइड पोस्ट ऑफ थायराइड रिप्लेसमेंट उसको तब भी चाहिए होगा इफ समबडी हु हैज बेसलाइन टीएसएच हाई लेवल्स है। ठीक है, तो आप हेमी करके आओगे तब भी उसको पोस्ट ऑफ थायरॉक्सिन चाहिए होगा। ठीक है, नाउ पेशेंट स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। सो इफ द पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ खराब है, ठीक है, ही कैन नॉट अंडरगो अ सेकंड सर्जरी, इट इज बेटर टू डू अ टोटल थायराइडेक्टमी फर्स्ट। ठीक है, एंड इफ ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंटली पेशेंट का प्रेफरेंस, अगर ऐसा लगता है दैट पेशेंट इज प्रेफरिंग टू अंडरगो थ्रू दैट एंजाइटी, इट इज बेटर टू डू टोटल थायराइडेक्टमी फर्स्ट। ठीक है, फिर ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन हमें पता है, देयर इज लो, इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क फॉर टोटल थायराइडेक्टमी, देयर इज आल्सो लो, इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क फॉर हेमीथायराइडेक्टमी। ठीक है, सो इसमें जैसे हमने थायरोग्लोबुलिन लेवल्स उसके लिए पढ़े थे टोटल के लिए, वैसे इसमें भी थायरोग्लोबुलिन लेवल्स एंड टीएसएच गोल्स हैं। ठीक है, सो हमने टोटल थायराइडेक्टमी में पढ़ा था कि पोस्ट ऑप जो है अगर आपका पोस्ट ऑप थायरोग्लोबुलिन नॉन स्टिमुलेटेड लेस देन 2 है, sorry 0.2 है, so it is an excellent response. But when in hemithyroidectomy a non-stimulated thyroglobulin of less than 30 is excellent response. ठीक है, similarly स्ट्रक्चरली एंड बायोकेमिकली इनकम्प्लीट क्या होगा? बायोकेमिकली इनकम्प्लीट क्या होगा? जब नॉन स्टिमुलेटेड थायरोग्लोबुलिन वाज मोर देन 1 आफ्टर टोटल थायराइडेक्टमी। इन हेमीथायराइडेक्टमी नॉन स्टिमुलेटेड तो इन्होंने ना 30 कट ऑफ बना लिया है। अगर 30 के नीचे है तो नॉन स्टिमुलेटेड थायरोग्लोबुलिन लेस देन 30 इज एक्सीलेंट, इफ मोर देन 30 इट इज बायोकेमिकली इनकम्प्लीट। ठीक है, तो अगर इस 30 बायोकेमिकल के अलावा यू फाइंड अ स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ डिजीज, इट इज स्ट्रक्चरली इनकम्प्लीट डिजीज। ठीक है, एंड इनडिटर्मिनेट में हमने टोटल में भी पढ़ा था, इफ देयर वर नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ऑन द इमेजिंग और थायरोग्लोबुलिन 0.2 से 1 के बीच में आ रहा था एंड देयर वर नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, ठीक है, देन यू वर कॉलिंग इट एन इंटरमीडिएट। इसमें भी क्या है, इसमें थायरोग्लोबुलिन तो इन्होंने बिल्कुल फिक्स दे रखा है, 30 से ऊपर खराब यानी बायोकेमिकली इनकम्प्लीट, 30 से नीचे एक्सीलेंट। तो रह क्या गया अब? नाउ वी कैन नॉट बायोकेमिकल इनडिटर्मिनेट के लिए हम लोग थायरोग्लोबुलिन तो चूज नहीं कर सकते, नाउ वील हैव टू गो फॉर इमेजिंग फाइंडिंग्स। सो ओनली नॉन स्पेसिफिक इमेजिंग फाइंडिंग्स एंड stable or declining thyroglobulin antibody levels is intermediate. TSH goals ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जैसे एक्सीलेंट में हम लोग टोटल थायराइडेक्टमी के लिए 0.5 से 2 लेके चलते थे, इसमें भी वही लेके जाएंगे। एंड बायोकेमिकली या स्ट्रक्चरली इनकम्प्लीट के लिए हम लोग 0.1 लेके चलते थे, इसमें भी हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, सो दैट मींस इट इज डिफरेंट।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था। ये ATA रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन तो सेम है, ठीक है। इसमें ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ATA हाई रिस्क में क्या होता है, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन इज हाई रिस्क, ठीक है। इसमें ना एक ग्लिच एक ये है कि एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन जो उन्होंने बोला है ना, ठीक है, इट इज ऑल सो if you see any kind of macroscopic extrathyroidal extension, ठीक है, there is no microscopic extrathyroidal extension के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। सो अगर if you see high risk is any kind of extrathyroidal extension, distant metastasis या फिर incomplete tumor resection अगर आप करके आए हो, that is high risk। लो रिस्क क्या होगा, अगर सिर्फ थायराइड के अंदर डिजीज है, कोई लोकल डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, सारा मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर जो है रिसेक्ट हो गया है, लोको रीजनल टिश्यू में इन्वेजन नहीं है, कोई हाई रिस्क हिस्टोलॉजी नहीं है जैसे टॉल सेल, इंसुलिन, कॉलमनार सेल, हर्टल सेल, ये सब नहीं है, कोई वैस्कुलर इन्वेजन नहीं है, कोई आयोडीन 138 अपटेक आउटसाइड थायराइड बेड नहीं है, ये सब टोटल का है, ठीक है। जब एनी ऑफ द फॉलोइंग हो जाए, सो microscopic invasion into perithyroidal tissue is intermediate, cervical lymph node metastasis is also intermediate, and tumor with any aggressive histology is intermediate, ठीक है। so high risk सिर्फ एक रहता है, any form of extrathyroidal extension, ठीक है, ये टोटल के लिए है। we are studying hemi only, ठीक है। so multifocality के लिए they also said कि पहले it was said कि multifocal tumors हैं तो मत करो हेमीथायरॉइडेक्टमी, ठीक है, बट अब ऐसा भी नहीं है। दे सेड दैट हेमीथायरॉइड if patients with multifocal papillary thyroid cancer, इनका भी अगर आप हेमीथायरॉइडेक्टमी करके आओ वर्सेस समबडी जिनका यूनिफोकल papillary ट्यूमर था, उसका आप हेमीथायरॉइडेक्टमी करके आओ, दोनों में द रेट एट विच द ऑपोजिट साइड द डिजीज विल कम या recurrence will come is the same, ठीक है। तो किसी का आप हेमी करके आए हो just on the basis of multifocal disease, ठीक है, that is not justified now, ठीक है। तो now they said less than 4 centimeter extrathyroidal extension नहीं होना चाहिए, nodal disease नहीं होना चाहिए, कोई high risk factors नहीं होने चाहिए, ठीक है, and multifocal disease is not a contraindication now anymore, ठीक है। सो फॉलो अप कैसे करेंगे, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम इसमें RAI नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, TSH लेवल्स करेंगे, थायरोग्लोबुलिन लेवल्स करेंगे। थायरोग्लोबुलिन का इसका कट ऑफ इज 30, ठीक है। इसमें भी डायनामिक रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो टोटल थायराइडेक्टमी के बाद डायनामिक रिस्क असेसमेंट दिया था टटल ने, हेमी के बाद दिया है मोमेसो ने, तो ये जो 30 वाला हमने पढ़ा है ये मोमेसो ने दिया है, ठीक है। यही है बस इसमें, ठीक है। देन